Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we begin a new chapter in physics of class 9th, that is said to be motion. It's not a game, it's a rich thing. What do you mean by motion? A body is said to be in motion if body change its position continuously with respect to time. If a body change its position with respect to time or with respect to a stationary object that is taken as reference point. अगर कोई बॉडी, इसको फिर समझ लीजिए, यदि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रही है, लेटर से बॉडी ए पोजीशन पर है, आफ्टर टी सेकेंड अगर बॉडी अपनी बी पोजीशन पर आ गई, मीन्स दैट यू कैन से दैट बॉडी अपनी पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज कर रही है, फॉर फ्रॉम ए टू बी चली गई, देयरफॉर बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, बॉडी मोशन में हो गई. इन द सेम वे इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. लेटर से अगर हम लोग व्हीकल्स में बैठ कर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व आउटसाइड द विंडो वी विल ऑब्जर्व दैट ऑल द ऑब्जेक्ट that are moving in this direction. What does it mean? These are stationary objects like let us say tree, mosque, temple, whatever you say. All these body moving in this direction when we observe outside the window of the vehicles. But it doesn't mean that these body moves because they are a stationary object. It means that we are in motion in this direction. Understand it? ये कॉन्सेप्ट है. अगर पोजीशन लगातार चेंज हो रही है बॉडी की विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, दैट पॉइंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दैट इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट. फाइनली वी कैन से दैट, इसको अगर कम्युलेटिवली अगर हम लोग बोलेंगे तो व्हाट डू मीन बाय मोशन? इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और रेफरेंस पॉइंट, दैट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, then body is said to be in motion. Sometimes this motion is too small. Sometimes these motion are so small that it is almost impossible to observe it. For example, the movement of our hand. Our hand अगर लेटर से अगर 12 के बाद 1 पे, 12 से 1 पे अगर आवर हैंड गई तो ये आप ऑब्जर्व, ये इतनी स्लो होगी वी कैंट ऑब्जर्व इट. But sometimes the velocity or speed of the body is so fast that it is almost impossible to locate it. For example, the velocity of the bullet की velocity, when we fired a bullet from the gun, its velocity is so fast that it is almost impossible to observe it. Now, to measure the distance, we will use an instrument which is known as odometer. ओडोमीटर क्या है? एक आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीकल्स में लगा होता है, जो ये बताएगी कि हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड सो फार बाय दिस बॉडी. बॉडी ने अब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये बताएगी ओडोमीटर. एंड व्हाट इज द स्पीड with that object moves, that is tells by another instrument that is called a speedometer. इन दोनों के बारे में कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे. कुछ नहीं है, ये दोनों, these are the two devices which is used, this much is used to measure the distance covered so far by the body, and this much with the speed. What is the speed with which the object or vehicles move, that is said to be a speedometer. Now we begin a new concept about distance traveled and displacement. What do you mean by distance covered and displacement? Distance covered, let's
let a body begins their journey from position A, and it covers 3 km toward south. After that, from B to C it moves, or you can say toward east, it moves 4 km. Finally body reaches at a point C. तो how much distance travel in this case? बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? फ्रॉम A to B, बॉडी ने A से जर्नी शुरू की, A to B है वो 3 किलोमीटर ट्रेवल की, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम B to C 4 किलोमीटर. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू actual length of path. We will define it in this way also. How define your distance covered? Distance traveled by body, or you can say actual length of path. Actual length of path covered by a body, irrespective the direction in which body moves. We will ignore the direction in which body moves. That is called distance covered. Once again, actual length of path covered by the body irrespective of direction. We will ignore, it is in matter the direction in which body moves. Okay, it is called distance traveled. Distance covered equal to AB plus BC, AB plus BC, that is 3 km plus 4 km इक्वल टू 7 किलोमीटर. ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस कवर्ड. ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्टेंस कवर्ड. हम लोग जब भी निकालनी होगी तो हम लोग डायरेक्शन को इग्नोर कर देंगे, बिकॉज बॉडी आपकी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो बॉडी इसमें डायरेक्शन लगातार चेंज करेगी. बट डिस्टेंस ट्रेवल के बाद अगर हम डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में जाएं तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? Displacement. Let body start their journey from position A, and from A to B, then from B to C. It is said to be initial position. The position where your body start their journey is said to be initial position, and finally reaches at this point. When we join A to C, it will be the shortest distance. It will be the shortest distance as well as a straight line, because यहाँ देखिए ये पूरा straight line है. If we join initial position to its final position, it is said to be a straight line. Okay, and it will be the shortest distance. तो how will define displacement? अब इसी को मिला देंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा आ गया. मिनिमम straight line distance or least straight line distance between initial position and final position, it's said to be displacement. मतलब इनिशियल पोजीशन u हो गई. इनिशियल पोजीशन को हम लोग रिप्रेजेंट, आगे आपको देखेंगे, इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे u के द्वारा, और फाइनल पोजीशन, सॉरी हम लोग इसको फिर से हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे. डिस्प्लेसमेंट the least and straight line distance between initial position and to final position. ऑफ अ बॉडी. मतलब क्या बताएगा? ये लीस्ट डिस्टेंस होगी
सबसे कम डिस्टेंस होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी फ्रॉम बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये हो गई इनिशियल पोजीशन, ये हो गई फाइनल पोजीशन, इसके बीच का लिस्ट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होगी दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। Obviously when we talk about displacement, it must have certain direction, it must have certain direction as well as it must have certain magnitude। अगर हम लोग magnitude निकालेंगे, let us say in this figure if we find their magnitude, that is after that displacement के बाद यहाँ आ जाएगा AC is equal to using Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem to determine what will be the value of AC. AC equal to square root of AB square plus BC square, that's equal 3 square plus 4 square equal 9 plus 25, sorry 9 plus 16 equal to 25 equal to 5 किलोमीटर। तो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। तो डिस्टेंस टेबल और डिस्प्लेसमेंट में आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट हम एक चीज़ और यहाँ डिस्कस करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी, those type of quantity in physics, those type of quantity that can be measured. We can measure length, we can measure temperature, we can measure area, volume, force, gravity, force of gravity, all these things, these are the quantity that can be measured is called physical quantity. There are two types of physical quantity. Physical quantity के दो types होंगे, vector quantity, scalar quantity. What do you mean vector quantity? Those type of quantity which have magnitude, as well as direction, जिसमें आपकी मैग्नीट्यूड भी होगी। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ इट हैविंग इन सम मेजरमेंट, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, as well as direction होगी। It is said to be vector quantity and scalar quantity which have only magnitude but no any direction, only magnitude। only magnitude, no direction। Look here, अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस covered is a scalar quantity। Why distance covered is a scalar quantity? Because it has only magnitude। If I say I can travel distance about 7 किलोमीटर, मैं 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। It doesn't specify in which direction body moves, यानी बॉडी ने किस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल की मेंशन नहीं है। Therefore ये हो गई आपका स्केलर क्वांटिटी, ये हो गई डिस्टेंस कवर्ड। बट अगर मैं ये बताऊं कि मैंने 7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में मैंने मूव की, मीन्स दैट 7 किलोमीटर और 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट मीन्स 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट मीन्स इट हैज़ मैग्नीट्यूड। लुक हियर, मैं लिख रहा हूँ उसको 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हियर 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज इसकी डायरेक्शन भी है। दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज सेड टू बी, लुक हियर, वेक्टर क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड भी है और आपकी डायरेक्शन भी है, देयरफॉर इट इज ए केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन भी करेंगे तो आप लोग को मैंने बोला था इट मस्ट हैव सर्टेन डायरेक्शन। देयरफॉर अगर हम 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट बोलते हैं तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन डिस्टेंस टेबल क्या होगा, आप डायरेक्शन को हटा देंगे, सिर्फ 5 किलोमीटर
distance covered by the body is 5 km, it is said to be this distance. But when we mention the direction in which body moves, therefore it is said to be displacement. Now we will discuss about displacement may be 0, but distance traveled can't be 0. Distance traveled can't be 0, but displacement may be 0. हम लोग यहाँ पर अभी जो मैंने लास्ट डायग्राम जो लिया था सेम डायग्राम मैं ले रहा हूँ. Look here, in this case, body, let us say body begins their journey from A to B and finally B to C. Here 4 km, here 3 km. What will be the displacement? अभी आपने पीछे देखा डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज √25 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर आ जाएगी. ये हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, एसी डिस्प्लेसमेंट. और डिस्टेंस कवर्ड अगर निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 4 + 3 इक्वल टू 7 किलोमीटर. यहाँ पर आपने देखा कि डिस्टेंस ट्रेवल आ गई, सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 7 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट आ गई 5 किलोमीटर. लेट अस से अगर हम इस क्वेश्चन को अगर यहाँ बोले कि बॉडी ने स्टार्ट की अपनी जर्नी फ्रॉम ए से, फिर ए टू बी, बी टू सी एंड वंस अगेन जो है वो ए पर चली आई. इस केस में क्या होगा? लेट अस से फिर से इसको ध्यान देंगे. बॉडी ने जर्नी शुरू की ए टू बी, बी टू सी एंड वंस अगेन सी टू ए. Then in this case distance travel is equal to how much? AB plus BC plus AC, that is 4 plus 3 plus 7, ये हो जाएगा आपका 14 किलोमीटर. बट डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें इस केस में, डिस्प्लेसमेंट दैट इज एसी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट एसी. डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन ए टू ए, बिकॉज बॉडी ने जर्नी शुरू की ए से और फिर फाइनली पहुंच गई ए पर. ओके, तो बिटवीन ए टू ए क्या हो जाएगा? ए टू ए डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी, वो हो जाएगी 0. तो यहाँ पर आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई. मीन्स दैट व्हेन द बॉडी बिगिंस देयर जर्नी फ्रॉम सर्टेन पॉइंट एंड वंस अगेन इफ इट रीचेज टू द सर्टेन पॉइंट, दैट पॉइंट, then under that condition initial position as well as final position remain the same, therefore displacement is equal to 0. but distance table can't be 0. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉडी ने गई और फिर यहाँ पर ए पर आई तो डिस्टेंस टेबल उसकी और बढ़ गई. लेट अस से सर्कुलर पाथ की बात करते हैं. लेट द बॉडी बिगिंस देयर जर्नी फ्रॉम सर्कुलर पाथ फ्रॉम पॉइंट ए. Let us say the radius of this circular track that will be r, capital R है. तो distance travel सर्कुलर ट्रैक पे हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड. तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. डिस्टेंस ट्रेवल अगर निकालना हो तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. सर्कमफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई r. ये हो जाएगी डिस्टेंस कवर्ड. ओके, यानी 1 राउंड में बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर्ड की, कितनी कवर्ड की? 2 पाई कैपिटल R. लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन
ए टू ए डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी 0, यानी बॉडी बिगिंस देयर जर्नी फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, वंस अगेन रीचेस द सेम पॉइंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा क्या इस केस में डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी 0 आ गई, हाँ, और बट डिस्टेंस ट्रेवल जन 0 नहीं हो पाई, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल जन कांट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट में बी 0। तो ये टॉपिक क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म मोशन, और एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? इफ ए बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कंडीशन यही है, इफ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, no matter the time interval, whatever time interval, whatever general time interval general so small, और time interval you can say, time interval कुछ भी, जितनी भी छोटी या जितनी बड़ी लेनी हो वो ले सकते हैं। फिर से डिफाइन करेंगे, a body is said to be uniform motion if a body covered equal distances in equal interval of time, no matter what time interval may be। ओके, यूनिफॉर्म मोशन में होगी। इफ ए बॉडी ट्रेवल, मैंने यहां लिखा इफ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बॉडी को क्या करना होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, देन सच टाइप ऑफ मोशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, डिस्टेंस in terms of meter. Let us say 0 second, 0, 1 2 3 4 10 20 30 and 40। 0 सेकेंड में डिस्टेंस टेबल 0, 1 सेकेंड में 10, दूसरे सेकेंड में दूसरे सेकेंड में 20, तीसरे सेकेंड में 30, चौथे सेकेंड में बॉडी ने 40 मीटर डिस्टेंस टेबल की। यहाँ पर टाइम इंटरवल देख रहे हैं हमेशा 1 होगा, 1 सेकेंड। यहाँ पर आइए, डिस्टेंस कवर्ड 10 10 10 ऑलवेज रिमेन द सेम। यही डिफिनेशन मैंने बताया था, इफ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। नाउ अब हम लोग ग्राफ में मूव करते हैं। इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन distance time graph, between distance and time, look here, distance time graph, distance is taken on y axis and time is taken on x axis. Let us say 0 second, 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50। इट इज सेड टू बी एक्स एक्सिस और इट इज सेड टू बी वाई एक्सिस। चलिए इसको ग्राफ पे हम लोग प्लॉट करेंगे। आप नीचे क्लास से आप लोग ग्राफ आपने पढ़ा मैथ में, 0 सेकेंड में टाइम 0, डिस्टेंस टेबल 0, 0 0 ये पॉइंट हो जाएगी, इट इज सेड टू बी ओरिजिन, आपको पता होगा। 1 सेकेंड ये हो जाएगी यहाँ। फिर उसी तरह से प्लॉट करेंगे, दूसरे सेकेंड में 20, तीसरे सेकेंड में 30 अप्रॉक्स, ये फोर्थ सेकेंड में 40 and so on. If we join all these points, we will get a straight line. It means that if a body moving with a uniform motion, the distance time graph will be a straight line. Uniform यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ये केस हो गई यूनिफॉर्म मोशन की। Means that if the body
travel with the same speed no clear हो गई है यूनिफॉर्म मोशन इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज a straight line it is said to be uniform motion. Now next non uniform motion इसमें क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of टाइम इंटरवल सेम होगा बट ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो इस केस में हम लोग बोलेंगे क्या कि ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। हम इसका एग्जांपल लेते हैं। फ्रीली फॉलिंग बॉडी अगर कोई बॉडी नीचे की ओर लगातार मूव कर रही है ड्यू टू जो ना अंडर द अर्थ्स ग्रेविटी इट इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज आपको पता है कि जैसे जैसे यहां पर ये अर्थ हो गई लेटर से ये ऑब्जेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे से नीचे आएगी आपको पता है द डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड अर्थ दैट विल गेट डिक्रीज्ड द डिस्टेंस between earth and object decreased it means that force of you can say gravitational pull by the earth all the time increases that is why अगर ये बॉडी जैसे से नीचे को आएगी वैसे वैसे इसकी वो स्पीड जो होगी वो बढ़ेगी यानी वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। लेट अस से फर्स्ट 1 सेकेंड में वो बॉडी जो होगी वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अगले 1 सेकेंड में बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी एज द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड द अर्थ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। अर्थ हमारी क्या करेगी उसको पुल करेगी यानी उसके कारण उसकी स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस कवर्ड जो होगी वो बढ़ जाएगी। मतलब अगर सेकेंड में अगले सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की लुक हियर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। मतलब ये हो गई कि फर्स्ट सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल की और अगले 1 सेकेंड में ये दिस मच मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस इट इज ए केस ऑफ अनइक्वल डिस्टेंसेस दैट इज वाई मैंने बताया कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी अगर कोई बॉडी अर्थ ग्रेविटी के तहत आ रही है तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। If we plot in a graph distance time graph of non-uniform motion we will get a curved line. How? Look here, time ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मीटर में ले लेंगे। चलिए 0 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड 0 1 10 दूसरे सेकेंड में 25 थर्ड सेकेंड में 40 फोर्थ सेकेंड में 50। प्लॉट इट टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी वो आपकी हम लोग ले लेंगे वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 ये हो जाएगी 10 20 30 40 50 ओके। यहाँ प्लॉट कर देंगे 10 20 30 40 ये हो जाएगी 50। थोड़ा गंदा हो रहा है ना। प्लॉट करेंगे 0 ये पॉइंट आ जाएगी 0 0 1 10
110 ये पॉइंट आ जाएगी, 225 225 ये पॉइंट आ जाएगी, अप्रॉक्स यहाँ आ जाएगा, 340 एंड 450। यानी ग्राफ जो होगी वो इस तरह से चल जाएगी। इट इज ए केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी ग्राफ जो होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आइदर ग्राफ ऐसे हो, जैसे भी, या ऐसे हो, कुछ भी होगा, लेकिन ये कर्व होगा। ओके, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म। एनीवे, आई थिंक सो कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैंने पूरा ग्राफ इसमें एक्सप्लेन किया कि ग्राफ पर कैसे प्लॉट होगा और वाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका ग्राफ जो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व क्यों होगा, यूनिफॉर्म का स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इसके बारे में मैंने चर्चा की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, इसको भी ध्यान देंगे, ये एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। हाँ, अगले हम लोग टॉपिक में हम लोग चलेंगे और अब हम लोग देखेंगे क्या, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी में जाएंगे, एक्सेलरेशन में जाएंगे, ये सब टॉपिक हम लोग आ जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। स्पीड is equal to distance covered by time taken. How will define speed? Distance covered by body in per unit time is called as speed. Distance traveled by body per unit time. Okay, we will represent speed as v, distance covered s. अब डिस्टेंस कवर्ड जनरली हम लोग की हैबिट हो जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग लेते हैं d, बट यहाँ पर फिजिक्स में हम लोग यहाँ से एक आप समझ लेंगे, पूरे अभी आगे जाएंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा, तो उसमें डिस्टेंस ट्रेवल को ऑलवेज वी विल रिप्रेजेंट विद दिस लेटर s एंड टाइम इज t। ओके, नाउ स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। वाई स्केलर? पीछे आपने देखा था, बिकॉज if I say my speed is 25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन नहीं है, therefore स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस कवर्ड की स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड का यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड हम लोग लेंगे क्या चीज में? इन टर्म्स ऑफ मीटर। टाइम कैसा यूनिट? सेकेंड। Therefore, SI unit of speed is meter per second, और you can say अलजेब्रा का मैं ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज कीजिए, नीचे में आपका S है, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा MS इनवर्स। क्या बोलेंगे इसको? MS इनवर्स। ये हो जाएगी स्पीड की पूरी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड। लेट अस से अगर एक बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो है वो एक जर्नी पर है, पूरी इंटायर जर्नी में बॉडी की स्पीड ऑलवेज नॉट द सेम, ऑलवेज यू कैन से दैट द स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म इन देयर इंटायर जर्नी। समटाइम्स वो बॉडी की स्पीड कभी ज़्यादा हो जाएगी, लेटेस्ट अगर वो वहाँ पर लेटेस्ट से ट्रैफिक जो है ना बिल्कुल क्लियर है तो वहाँ स्पीड बढ़ जाएगी, और जहाँ रश होगा, ट्रैफिक रश होगी, वहाँ पर आपकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। बीच में आपको, आप इंटायर जर्नी में पूरा लगातार आदमी वो ट्रेवल करता नहीं है, आपको पता है, कहीं पर रेस्ट करेगा तो वहाँ पर टाइम आपको बढ़ती चली जाएगी। तो पूरे इंटायर जर्नी में अगर हम बात करें कि एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग टोटल डिस्टेंस ले लेंगे
और टोटल टाइम टेकन, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा एवरेज स्पीड, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, दोनों में अंतर क्या है, स्पीड और जो है एवरेज स्पीड में। अगर मैं बोलता हूं कि माई स्पीड इज 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में आपने 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। बट अगर मैं बोलता हूं कि मेरी स्पीड 25 मीटर पर मेरी एवरेज स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है, इट मीन्स दैट इसमें क्या किया गया एवरेज स्पीड में, यानी मतलब हो गया कि कहीं पर स्पीड ज़्यादा हुई होगी, कहीं पर स्पीड कम हुई होगी। ये कॉन्सेप्ट है आपका एवरेज स्पीड का। एंड ऑब्वियसली एवरेज स्पीड नथिंग बट इट इज ए टाइप ऑफ स्पीड, देयरफॉर ऐसा यूनिट रिमेन द सेम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म एग्जैक्टली यूनिफॉर्म मोशन की तरह ही है। यूनिफॉर्म मोशन में आपने पढ़ा था बॉडी ट्रेवल, इफ द बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एग्जैक्टली यहाँ भी सेम होगा। मोशन एक्चुअली में हम लोग मोशन टर्म अब पूरे अभी आगे जितना भी करेंगे या तो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा, ये मोशन टर्म हट जाएगा, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में स्पीड या वेलोसिटी बोथ आर टेकन इन द सेम सेंस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर आप जान लेंगे टोटल कॉन्सेप्ट वही है जो यूनिफॉर्म मोशन है। अगर वो डिफाइन करने के लिए अगर दिया जाए तो वही सेम बोलना होगा आपको। इफ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, दे आर बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का भी अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले लें तो यूनिफॉर्म स्पीड का आपका स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। ओके, एग्जैक्टली इन द सेम वे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ ए बॉडी ट्रेवल ऑन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी वो अनइक्वल होगी, टाइम इंटरवल इक्वल होगा, बट सेम कॉन्सेप्ट है। आपने पीछे देखा, आप इस बात को ध्यान देंगे, अगर पीछे आपने देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने वहाँ पढ़ाया था इफ ए बॉडी ट्रेवल ऑन इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज ए केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ पर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, इन द सेम वे इफ वी ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिटवीन these two axes, then the distance time graph of non-uniform motion either in this way or in this way. Okay, it is said to be, you can say it, we will got the graph of distance time graph is curved line. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी को मैंने कैसे यहाँ लिखा, लुक हियर, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन डिवाइड बाय टाइम टेकन। मीन्स दैट व्हाट यू मीन बाय वेलोसिटी, body is said to be moving with certain velocity if body travel certain distance in a specified direction with respect to time। यानी जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगी बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बट वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है
कि एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट जो है ना आपका स्पीड की तरह ही है। आपने देखा होगा कि स्पीड में भी मैंने बताया था डिस्टेंस टेबल बाई टाइम टेकन, बट दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, ये डायरेक्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्शन, जब भी हम लोग डिस्टेंस टेबल करेंगे इन ए सर्टेन डायरेक्शन वी टॉक अबाउट वेलोसिटी। सबसे बेसिक डिफरेंस यही है। तो आप यहां पर बताएंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टेबल इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन डिवाइड बाई टाइम टी, यानी यू कैन से इट v इज इक्वल टू, यहां भी सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, डिवाइड बाई s बाई टी। नाउ बिकॉज यू नो दैट जो ना डिस्टेंस टेबल इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जरा सा टॉपिक में चले जाइए पीछे, फिर मैंने वहां डिस्कस किया था डिस्टेंस टेबल इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन it is called displacement, that is why instead of distance table in specified direction we will replace it with the displacement, means that velocity is equal to displacement by time taken। यानी वेलोसिटी का एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि हम लोग हमने क्या किया, डिस्टेंस टेबल इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इसकी जगह क्या लिखा, मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा। क्यों? क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पता है। डिस्टेंस टेबल इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज नथिंग बट इट इज ए टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वी कैन राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। कैसे जीरो हो सकती है वेलोसिटी, वो हम लोग देखेंगे। बिकॉज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। मतलब बॉडी बिगिंस देयर जर्नी एंड इफ बॉडी वंस अगेन रीचेज एट द सेम पॉइंट देन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू जीरो। माय नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी? आपने यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताया। यूनिफॉर्म स्पीड का पहला कंडीशन था बॉडी हैज टू ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी बॉडी को पहला कॉन्सेप्ट था बॉडी हैज टू ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इक्वल इंटरवल टाइम। दूसरी हो जाएगी बॉडी हैज ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। दो चीज फिर से ध्यान देंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल टाइम। एक कंडीशन, यानी बॉडी को इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा इक्वल इंटरवल टाइम में। एंड नंबर टू, बॉडी हैज टू मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। क्योंकि स्पेसिफाइड डायरेक्शन की बात करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो बॉडी हैज टू मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज वाई मैंने यहाँ पर ये दो कंडीशन मैंने लिखा। ये दो कंडीशन अगर कोई ऑब्जेक्ट फुलफिल करेगी, अंडर दैट कंडीशन वी कैन से दैट यस बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ यहां से दो बातें क्लियर हो रही है। वी कैन चेंज द वेलोसिटी बाई टू वेज, आइदर बाई चेंजिंग डायरेक्शन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर वो मूव ना करेगी, मतलब अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर बॉडी लुक हियर, ये सर्कुलर पाथ पे लगातार रोटेट कर रही है, अगर इस सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव कर रही है, बॉडी हैज टू चेंज इट्स डायरेक्शन अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, बिकॉज आपको पता है
ऑन ए सर्कुलर पाथ देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड फ्रॉम ईच पॉइंट, यहाँ पर कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और इन सारे पॉइंट से बॉडी अपनी डायरेक्शन को बार बार, चूंकि अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ से बॉडी अपनी डायरेक्शन को लगातार चेंज करती चली जाती है। देयरफॉर वी कैन चेंज द वेलोसिटी आइदर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर दें तो बॉडी की जो वेलोसिटी होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होगा वो चेंज हो जाएगी, या बॉडी, यहाँ पर कंडीशन क्या था कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा इक्वल इंटरवल टाइम में। अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल टाइम में तो देन इट इज नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वी कैन चेंज द वेलोसिटी आइदर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन और बाय चेंजिंग द डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल टाइम। यहाँ पे ये जो आपका दिया हुआ है कि बॉडी हैज़ टू ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, इसके जगह हम लोग स्पीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पीड का। यू नो व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, मीन्स दैट आप यहाँ से ये भी बता सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो ना बॉडी की अगर स्पीड चेंज कर जाएगी, ये चेंज करना मतलब स्पीड चेंज करना, अगर बॉडी की स्पीड चेंज कर जाएगी तो मीन्स वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो भी वेलोसिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ओके, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रही है, इफ़ ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ये पॉसिबल है कि बॉडी की स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ये पॉसिबल है, या 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी मूव्स विद 25 मीटर या 25 किलोमीटर पर आवर ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। सिंस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस कंटिन्यूसली, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रही है, वेलोसिटी कैसे चेंज करेगी, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वैसी स्थिति में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस नहीं होगा। यूनिफॉर्म स्पीड तो ये होगा, ये बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर सकती है सर्कुलर पाथ पे, लेकिन चूंकि सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव कर रही है, बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर you cannot say about constant, you cannot talk about uniform velocity। सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी कभी नहीं मूव कर सकती है, बिकॉज बॉडी की डायरेक्शन लगातार कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर हम यूनिफॉर्म में स्पीड बोले तो बिल्कुल सही है, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर सकती है बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं। दो कारण आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो, क्योंकि स्पीड हमेशा सेम है। मैंने यहाँ पर इसको भी यहाँ पर भी देख सकते हैं, स्पीड कांस्टेंट रखा जाए, अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर दें तो भी वेलोसिटी चेंज कर जाएगी, यहाँ भी वही केस है। स्पीड कांस्टेंट रखा जा रहा है बट डायरेक्शन लगातार चेंज कर रही है, देयरफॉर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। ओके, थैंक यू।